Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well. Today I am going to start my new session और आज ये फर्स्ट क्लास है इसकी और उसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th और उसका आज मैं पार्ट 1 आपको बता रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी फेमिलियर अबाउट what chemical reactions. So first of all I will tell you what are chemical reactions. लेकिन chemical reactions समझने से पहले you should be familiar with physical reactions. बिल्कुल contrast है ये एक दूसरे के. तो physical reactions are those where no new substance is formed और उसको easily आप reverse भी कर सकते हो. रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द फिजिकल रिएक्शंस. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. लाइक इफ़ यू कूल द वाटर, आप वाटर को फ्रीज़र में रख देते हो, देन इट विल गेट सॉलिडिफाइड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, दैट इज आइस. आइस को अगर आप वापस से बाहर निकाल दोगे थोड़ी देर में इट विल मेल्ट डाउन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर अगेन. सो वाटर से सॉलिडिफाइड होना, आइस बनना और आइस से वापस पानी बदल जाना, इट्स अ फिजिकल चेंज. क्योंकि वेदर इट इज़ आइस और वाटर वेपर और स्टीम, द फॉर्मूला इज द सेम, दैट इज H2O. सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. H2O तो H2O ही रहा, वेदर इट इज आइस और वाटर और लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स और स्टीम, इट इज ऑलवेज H2O. सो कोई केमिकल चेंज नहीं आया उसमें. No new substance is formed. Water is as such, सिर्फ फिजिकल स्टेट उसकी बदली है, सॉलिड, लिक्विड या गैस. सो इट विल बी अ फिजिकल चेंज. बट नाउ वी आर डूइंग केमिस्ट्री, सो अभी हम करेंगे व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इज बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. यहाँ पर क्या है कि whenever two or more than two substances react together, they form a new substance. Altogether new substance having altogether new properties. उसमें जो उसके रिएक्टेंट्स है जिससे वो बना है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है एंड टोटली अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. Normally chemical reactions are not reversible, they are irreversible normally. So chemical reaction is a reaction, it is a process in which when two or more than two substances react together chemically, a new substance is formed having different chemical properties. नया substance एक बन जाता है. So that is known as chemical reaction. एक वेल नोन एक्टिविटी आपके NCERT में दी हुई है and that is burning of magnesium ribbon. Magnesium is a metal and normally हमारे chemistry lab में it is found in the form of magnesium ribbon के फॉर्म में वो हम chemistry lab में से रखते हैं. So burning of magnesium ribbon, this is an activity given in your NCERT book. इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है बुक में. तो in this reactivity what is happening, ये आपका एक बर्नर है. This is the magnesium ribbon, ये magnesium ribbon है and this is the tong से हम we are burning magnesium ribbon. When you burn magnesium ribbon, then magnesium ribbon or magnesium burns in the presence of oxygen. Atmospheric oxygen में हर चीज़ burn होती है. So magnesium ribbon also burns in the presence of oxygen and forms a different, completely different, totally different substance, that is magnesium oxide, MgO. This is the equation. You have to write down the balanced equation. Next part में मैं आपको balancing of equation बताऊंगी. So यहाँ पे 2Mg plus O2 is equal to 2MgO. This is a chemical reaction. Magnesium it is a metal. It is having its own properties and oxygen is a gas. इसकी अपनी properties होती हैं. When they combine together, when magnesium burns in the presence of oxygen and chemically they combine together, they form magnesium oxide. Magnesium oxide, it is a salt, it is an oxide. Salt है, उसकी अपनी totally different properties होती हैं. So this is totally different from magnesium and oxygen gas. So this is a case of chemical reaction. Now on the basis of this activity हमने ये तो बता दिया कि burning of magnesium is
केमिकल रिएक्शन। पर इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं पूछे हुए आपकी NCERT बुक में, और उसमें देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमनली वो क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं, पूछते हैं स्टूडेंट से, एंड दैट इज़ व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर बर्निंग यू विल हैव टू क्लीन इट। दिस इज द NCERT क्वेश्चन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। आंसर उसका आप कैसे दोगे, आपको हर एक बुक में इसका आंसर मिल जाएगा, पर मैं आपको एक क्लियर कट इसका आंसर बताती हूँ, और मैं आई होप कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसी तरह से आंसर लिखें और ऐसे ही स्टार्ट करें जैसे मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे, हाउ टू स्टार्ट इट। मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर? मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट बर्न्स, it keeps on reacting with oxygen, atmospheric oxygen at room temperature. Room temperature पे भी it keeps on reacting with atmospheric oxygen and forms a white coating on it. तो मैग्नीशियम का जो भी आर्टिकल है, मैग्नीशियम रिबन है जैसे, in a natural way it will be having a white coating of magnesium oxide on it. So अगर आप as such if you burn it, then this magnesium oxide जो coating है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, it will interfere the reaction, वो reaction में interfere करेगा और उसकी burning properly नहीं होगी। To overcome this problem, you will have to clean उससे sand paper से इसको scrub करके you can clean the surface of magnesium ribbon and then you start doing this activity. So now make the summary of this answer कि why magnesium ribbon is cleaned before burning। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, उसकी समरी क्या बनी कि magnesium is a very reactive metal, under ordinary conditions it will keep on reacting with atmospheric oxygen and will form a white coating of magnesium oxide on it. So this magnesium oxide coating will interfere the burning or reaction of magnesium with oxygen. So we will have to, before the reaction, before this activity, you will have to remove the layer of a coating of magnesium oxide by scrubbing it by sandpaper. So this is the answer of this question, right? This is the equation, chemical equation है 2Mg plus O2 is equal to 2MgO. Sometimes they will give you this एक्टिविटी, ये सिर्फ आपको फिगर डायग्राम ही दे देंगे कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में, एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर एक आपको समटाइम्स क्या दे देते हैं, वो एक पेट्री डिश या एक चाइना डिश भी रखी हुई होती है यहाँ पे, और एक चाइना डिश भी यहाँ पे रखी हुई होती है जिसको हम पेट्री डिश भी कहते हैं, और इसमें यू विल फाइंड सम वाइट पाउडरी सब्सटेंस, सम वाइट पाउडरी सब्सटेंस इसके अंदर, ये है मैग्नीशियम रिबन आपका, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सम पार्टिकल्स ऑफ वाइट पाउडरी सब्सटेंस विल फॉल डाउन इन दिस चाइना डिश, इसमें आप आगे गिर जाएंगे। सो ये आपको फिगर कई बार दिया हुआ होता है क्वेश्चन पेपर में, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एक्टिविटी। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एक्टिविटी कि इन दिस एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब ये बर्न होता है वाइट ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल जैसे फुलझड़ी जलती है, ब्राइट लाइट will be produced. You will have to keep your face away, otherwise it might harm your eyes. So white bright substance light produce होगी and a powdery substance white color का powdery substance will fall down in this petri dish. ये white color का जो powdery substance है, what is this substance? This is magnesium oxide. Magnesium oxide is a white powdery substance. How does it form? बनता कैसे है ये कि when you burn magnesium ribbon in the presence of oxygen, then a bright light, चमकीली लाइट एकदम प्रोड्यूस होगी वाइट कलर की, and this white powdery substance will fall down in this petri dish or china dish. So this is the whole activity. और इससे घुमा फिरा के आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चन they can ask,
ये एक्टिविटी, ये डायग्राम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे क्या हो रहा है इसके अंदर। सो आपने सारा कुछ जो मैंने अभी आपको बताया एक्सप्लेन करना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई मैग्नीशियम इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, उसका मैंने आपको अभी आंसर बता दिया। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस एक्टिविटी एंड burning of magnesium. We have some other examples. Everyday life में you will see a number of examples of chemical reactions. जैसे कि when you make curd out of milk, milk में आप जाग लगाते हो और उससे curd बनाते हो. Curd is a new substance. It is altogether different from milk. Milk में no lactic acid is present. जब आप उसमें जाग लगाते हो, थोड़ा सा दही डालते हो, तो बैक्टीरिया will develop, start growing in it. लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करने लग जाएंगे और इट विल बिकम सॉलिड, इट विल गेट सॉलिडिफाइड और कर्ड बन जाएगा। एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, इट इज ऑल टुगेदर, इट्स प्रॉपर्टीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन को अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर यू कीप इट फॉर फ्यू डेज, उसके ऊपर ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस विल स्टार्ट फॉर्मिंग एंड दैट इज द रस्ट। Fe2O3.XH2O, this is the composition of rust. Brown powdery substance is rust, वो rust बन गई है। आयरन से rust which is the oxide of iron वो बन गया। All together a new substance is formed. So this is also a case of chemical reaction. Rusting of iron is also an example of chemical reaction. और एग्जाम्पल आप ले सकते हो डाइजेशन, डाइजेशन इन द बॉडी। एक वेल नोन एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस का। हमारे बॉडी में अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, और ये एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है एवरीडे लाइफ में। आप फूड में लेते हो प्रोटीन, इट गेट्स कन्वर्टेड, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स अल्टीमेटली। You take carbohydrate, ultimately it gets converted into glucose, altogether a different substance from its previous reactant. You eat fat, fat हमारे body में जाकर does not remain as such, it gets converted into fatty acids and glycerol. So these are all chemical reactions. हमारे body के अंदर जो respiration होता है, जो growth होती है, these are all chemical reactions. और इसके अलावा photosynthesis हो गया और ripening of fruits है। फ्रूट्स जब रॉ होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। व्हेन दे बिकम ripening of fruits, it is also a case of chemical reaction. सो आपने एवरीडे एग्जाम्पल में कितने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। दिस इज द एक्टिविटी जो कि आपके NCERT में एलैबोरेट करके बताई हुई है। एंड वी हैव सम केमिकल रिएक्शंस आपकी अपनी केमिस्ट्री लैब में भी होते हुए देखते हो। फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा है, एसिड कम है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है, देन इट फॉर्म्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। Before the reaction, zinc was there, dilute sulfuric acid was there. After the reaction, two altogether different substances are formed. एक तो जिंक सल्फेट बन गया और दूसरा हाइड्रोजन गैस will be evolved. So this is also a case of chemical reaction. Hydrogen gas reacts with oxygen gas to form water. क्या बनाता है ये? Water. This is the chemical reaction. Hydrogen gas combines with oxygen to form 2H2O water. I am writing balanced equations because at 10th standard you are expected to write balanced chemical equation. और कैसे करते हैं बैलेंस मैं नेक्स्ट आपके पार्ट 2 या पार्ट 3 में एक्सप्लेन करूँगी। So this is water. All together it is having new substance. ये गैस है, ये भी गैस है और ये आपका वाटर वेपर्स के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में वाटर बनता है। वाटर की प्रॉपर्टीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और एग्जाम्पल ऑफ यू हैव पूरी केमिस्ट्री की बुक आपकी भरी पड़ी है केमिकल रिएक्शंस में। अगले 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के ही हैं आपके NCERT में। सो यू विल गेट जितने मर्जी अनलिमिटेड नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस आप लेके एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस,
और बनता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड. This is also a case of chemical reaction. सोडियम मेटल हाईली पॉइजनस मेटल है, क्लोरीन गैस वेरी पॉइजनस टॉक्सिक गैस है ये भी. और जब दोनों कंबाइन होके केमिकली कंबाइन होके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, ऑल टुगेदर अ न्यू सब्सटेंस, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है और हम इसको अपने फूड में डाल के खाते हैं. जबकि जिससे ये बना है सोडियम एंड क्लोरीन बोथ आर पॉइजनस. व्हेन दे कंबाइन केमिकली, प्रॉपर्टीज उनकी देखो कैसे चेंज हो गई. बिल्कुल ही एक ऐसा नया सब्सटेंस बन गया जिसको हम खाते हैं अपने फूड में. इट इज़ अ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट है ये. सो दीज आर सम ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इफ यू हीट इट, ये जो डेल्टा का साइन है ये हीट का सिंबल है, यू विल गेट 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस बनती है. दिस इज ऑल्सो, दीज आर द टू ऑल टुगेदर न्यू सब्सटेंसेस. पोटेशियम क्लोराइड विल गेट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और ये आपको दो नए सब्सटेंस बन जाए. सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो ये मेरा आज का पार्ट 1 था. आई विल बस दैट इज़ ऑल टुडे, एंड इट्स ओनली वन टॉपिक टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैं स्मॉल एक टॉपिक लेके छोटे वीडियोस बनाऊंगी, और ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का. तो नेक्स्ट पार्ट में वी विल टेक अनदर टॉपिक एंड आई विल एक्सप्लेन इट एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब इट और नेक्स्ट वीडियो का मेरा आप वेट करो. थैंक यू सो मच.